morning, guys. In the previous lecture, I think we have started the cantilever method. Okay, for that previous lecture, we have taken one of the portal method problem. We have done with it. After that, we have started the cantilever method. There are 2 points which we have to remember. That is, or we can say these are the assumptions for the cantilever method. The first assumption is that the point of contraflexure will occur at middle of each member. Same as in the portal method, हम लोगों ने assume किया था that is point of contraflexure, that is जो hinges form होंगे it will be at the middle of each member. Whereas second यहाँ पे जो है assumption वो थोड़ा सा different है, that is direct stresses in the column, यानी कि whatever column यहाँ पे हम लोग जो दिखा रहे हैं vertical columns, उसमें जो direct stress रहेगा that is force upon area in the columns are proportional to their distances from the centroidal vertical axis of the frame. Whatever we can find out the centroidal vertical axis, okay, by using the normal hour formula, that is x is equals to a1 x1 plus a2 x2 plus a3 x3 divided by total area. From that we can find out these position of the vertical axis, or we can say centroidal vertical axis. So once we get the position from any reference column, then we can take the distances of each column from this centroidal axis. ओके, तो हम लोग ये रेशियो हम लोग यहाँ पे कॉमन लिखते हैं, दैट इज V1 अपॉन A1, दैट इज डायरेक्ट स्ट्रेस इन द कॉलम 1 डिवाइडेड बाय x1, दैट इज पोजीशन ऑफ द कॉलम फ्रॉम द CG, इज इक्वल्स टू हर एक कॉलम के लिए हम लोग यहाँ पे रेशियो कांस्टेंट लेते हैं. सो दिस इज अवर वन इक्वेशन जो अपने को ऑप्टेन रहेगी. तो हर एक रिलेशन हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ओनली वन अननोन, so that if we take the moment at the point of contraflexure for the single story, then we will get the equation in the form of V1 V2 V3 V4. So whatever the other values जो है, that is V2 V3 V4, we can put that other values in the form of V1, so that our total equation will be in the form of only one constant. So if we have the one constant and one equation, then we can find out that unknown value easily. So after getting that V1, by using this ratio, we can find out V2, V3, V4 for the single story. Similarly, we can further proceed for the second story, then third story, to find out the vertical forces. And once we get the vertical forces or axial forces in the column, then we will use the static equilibrium equations for the analysis. So today we will start with the one of the problem. एक ही प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं जिसमें तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाउ वी आर वर्किंग विद द कैंटिलीवर मेथड. सो लेट अस टेक, यहाँ पे हम लोग एक प्रॉब्लम ले लेते हैं. एनालाइज द गिवन फ्रेम बाय यूजिंग द कैंटिलीवर मेथड. प्रॉब्लम थोड़ा सा हम लोग बड़ा ही ले लेते हैं, सो दैट वी विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट. वी आर टेकिंग द 3-story बिल्डिंग. डोंट वरी, एग्जाम में तुम लोगों को 3 स्टोरी नहीं आएगा, मैक्स टू मैक्स 2 स्टोरी तुम लोगों को पूछा जाएगा. दिस इज अवर बिल्डिंग जो अपने को गिवन है. ऑब्वियसली बॉटम पे यहाँ पे तुम लोगों को फिक्स सपोर्ट ही रहेगा. सो लेट अस ड्रॉ द फिक्स सपोर्ट एट द बॉटम. मोस्ट ऑफ द टाइम तुम लोग कैंटिलीवर और पोर्टल दोनों में ऑप्शन आ सकता है, दैट इज सॉलिड बाय द कैंटिलीवर, अदरवाइज पोर्टल मेथड. लेकिन नहीं आया तो इसलिए दोनों मेथड्स तुम लोग ठीक से ध्यान से पढ़ लो. दैट इज ऑब्वियसली हम लोग सिर्फ लैटरल लोडिंग के लिए यहाँ पे मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग सिर्फ लैटरल लोड ही अप्लाई करेंगे. सो लेट अस कंसिडर एट द टॉप, यहाँ पे 40 किलोन्यूटन लोड है. सेकेंड 80 किलोन्यूटन, एंड द थर्ड वन दैट इज 80 किलोन्यूटन.
So now the beam is, or column is given, this is A, B, C, D. Then the next one, wait for a second. Next column is EF. EFGH. Next one, that is IJKL. And the last one, that is MNOP. ऑलरेडी यहाँ पे हम लोगों को हाइट दिया है, दैट इज लास्ट स्टोरी का हाइट है, दैट इज 4 मीटर. दिस इज ऑल्सो 4 मीटर. टोटल तुम लोगों को 4 मीटर का एक कॉलम दिया हुआ है, तो तीनों हाइट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं. दिस इज 4 मीटर. देन फर्स्ट स्पैन है तुम लोगों का 8 मीटर का, सेकेंड वन ऑफ 6 मीटर एंड थर्ड वन ऑफ 4 मीटर. ठीक है, टोटल प्रॉब्लम तुम लोगों को गिवन है, थोड़ा सा यहाँ पे गिवन है, दैट इज एनालाइज द फ्रेम शोन इन द फिगर बाय कैंटिलीवर मेथड. एरिया ऑफ ईच एक्सटीरियर कॉलम इज 1/2 ऑफ द एरिया ऑफ इंटीरियर कॉलम. देखो तुम लोगों को कंडीशन दिया रहेगा हर बार कॉलम के लिए. इफ़ नॉट गिवन तो तुम लोग एज्यूम कर सकते हो कि एरिया ऑफ ईच कॉलम सेम है, लेकिन अगर कंडीशन दिया है तो अपने को वो लिखना ही पड़ेगा. दैट इज एरिया ऑफ each exterior column is one half of the area of interior column, इंटीरियर कॉलम. ठीक है, मतलब इंटीरियर कॉलम है 1/2 ऑफ द इंटीरियर कॉलम. तो तुम लोग अगर इंटरमीडिएट कॉलम का अगर एरिया डबल एज्यूम कर रहे हो तो एक्सटीरियर का तुम लोगों का सिंगल एरिया रहेगा. ओके, जितना भी तुम लोगों का एरिया रहेगा इंटरमीडिएट कॉलम का, उसके हाफ ऑफ द एरिया तुम लोगों का एक्सटीरियर कॉलम का रहेगा. तो ये अपने ऊपर है, कांस्टेंट वैल्यू तुम लोग का एज्यूम करनी पड़ेगी, सो दैट वी कैन पुट द एरिया ऑफ द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर कॉलम इन द वन कांस्टेंट. सो लेट अस एज्यूम कर लेते हैं एरिया के लिए हम लोग कि एरिया ऑफ ईच एंड कॉलम. इफ यू वांट टू एज्यूम, यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ एरिया ऑफ ईच एक्सटीरियर कॉलम एज कैपिटल ए. अगर एक्सटीरियर कॉलम का कैपिटल ए है तो कंडीशन से हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ईच इंटीरियर कॉलम will be nothing but 2 into area. So now if you take the total area, तो देखो यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं, तो हम लोग टोटल एरिया अगर कैलकुलेट करेंगे, टोटल एरिया विल बी, पहला कॉलम है दैट इज एक्सटीरियर, तो ये आ जाएगा ए प्लस 2 इंटीरियर कॉलम्स है तो प्लस 2a प्लस 2a और 1 मोर एक्सटीरियर कॉलम है, तो तीनों का समेशन हम लोग करेंगे सब कॉलम्स का, तो दैट विल बी 6 into a. दिस इज द टोटल एरिया. सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ द सेंट्रोइडल एक्सिस. ओके, तो फर्स्ट स्टेप जो रहेगा, वी हैव टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोइडल एक्सिस. तो मैं इसमें यहाँ पे पोजीशन लिख देता हूँ. लेट अस कंसिडर रेड से हम लोग मार्क कर रहे हैं. एज्यूम कर लेते हैं कि इसके बीच में किधर तो तुम लोगों का सेंट्रोइडल एक्सिस आएगा. तो अगर ये तुम लोगों का टोटल सेंट्रोइडल एक्सिस है तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं तुम लोग का रेफरेंस जो कॉलम रहेगा हम लोग फर्स्ट को एज्यूम करते हैं, दैट इज ABCD कॉलम को हम लोग रेफरेंस एक्सिस पकड़ते हैं.
So we can find out the position of that CG from the reference column ABCD. So if you take the moment of that area, so we can take that is x bar will be equals to जैसे हम लोग a1 y1 यूज करते थे वैसे हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे a1 इंटू डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट विल बी 0 बिकॉज उसी पॉइंट से हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पे मूवमेंट ले रहे हैं ABCD के ऊपर, तो इसका एरिया मल्टीप्लाई इसका डिस्टेंस कितना है 0। आगे जाके सेकेंड कॉलम का इसका इधर से एरिया का डिस्टेंस रहेगा 8 मीटर, आगे कॉलम का रहेगा दैट इज 8 + 6 और उसके लास्ट वाले कॉलम का रहेगा 8 + 6 + 4। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं दैट इज एरिया इंटू 0 प्लस सेकेंड वन आएगा दैट इज 2 एरिया मल्टीप्लाई बाय 8 मीटर प्लस थर्ड का रहेगा दैट इज 2 एरिया मल्टीप्लाई बाय टोटल डिस्टेंस इज 8 + 6 आई थिंक इट इज 14 मीटर प्लस लास्ट एरिया दैट इज एक्सटीरियर कॉलम का है तो सिंगल एरिया आएगा मल्टीप्लाई बाय उसका डिस्टेंस आएगा टोटल विल बी 18 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला हुआ है तो वहाँ से भी डिवाइड किया तो भी चलेगा विच इज नथिंग बट 6 इंटू एरिया। Okay, by using this equation we will get the x bar which is nothing but the position of the CG or we can say centroidal axis। तो यहाँ पे अगर हम लोग चेक करेंगे एरिया कैंसिल हो जाएगा तो x bar अपना आता है दैट इज 10.33 मीटर। ओके, सो हम लोग को ये वैल्यू मिल गई दैट इज 10.33 मीटर। ये तुम लोगों का 10.33 है, सो वी कैन फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑल्सो। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना रहेगा रिटर्न, ये वाला भी डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं और ये वाला भी। ओके, बिकॉज अपने को टोटल पोजीशन चाहिए हर एक कॉलम का, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि ये तुम लोगों का रहेगा 10.33। अगर ये 10.33 है तो उसमें से 8 चला गया तो यहाँ से अपने को मिल जाएगा 2.33 दैट इज पोजीशन ऑफ द सेकेंड कॉलम फ्रॉम द CG। सिमिलरली 6 में से 2.33 चला गया तो ये अपने को मिल जाएगा 3.67 पोजीशन ऑफ द थर्ड कॉलम फ्रॉम द CG। एंड द लास्ट कॉलम का अगर चेक करोगे 3.67 प्लस तुम लोगों का ये जो डिस्टेंस है दैट इज 4 मीटर विच इज़ नथिंग बट 7.67 मीटर। तो ये अपने को पोजीशन मिल गया CG का दैट इज वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ ऑल द कॉलम्स। आफ्टर गेटिंग दिस वी विल फर्दर प्रोसीड फॉर द सेकेंड इक्वेशन। एज वी नो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉर दी फर्स्ट स्टोरी। तो अगर चेक करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट स्टोरी देखो कौन सा है, ये हम लोग नीचे का जो स्टोरी है इसके लिए अगर हम लोग वर्क करते हैं तो तुम लोग को इसके पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर पे सेक्शन लेना पड़ेगा। सो इसके लिए मैं रिटर्न यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ दैट इज़ वी कैन से यहाँ से स्टार्ट करते दैट इज स्टोरी 1। बिकॉज जो इक्वेशन हम लोग अप्लाई करेंगे वो स्टोरी 1 के लिए अप्लाई करेंगे फर्स्ट। तो लेट अस यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बनाओ जिससे अपने को सिंप्लीफाइड हो जाए। ऊपर का तुम लोग का स्टोरी वैसे ही रहेगा, ये नीचे का तुम लोग का हाफ स्टोरी चला जाएगा। लेट अस कंसीडर ये थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा। इफ़ यू वांट तो यहाँ पे हम लोग इसको रिमूव कर देंगे बिकॉज इसके हाफ पे हम लोग यहाँ पे सेक्शन लेने वाले हैं। तो लेट अस कंसीडर अपने जो लोड्स रहेंगे ऊपर वैसे के वैसे ही रहेंगे। दिस इज़ 40, दिस इज़ 80 और ये भी तुम लोग का 80 रहेगा। वॉट एवर हम लोगों ने सेक्शन कहाँ पे लिया है, जहाँ पे तुम लोगों का इंटरनल इंच और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है वहाँ पे हम लोगों ने सेक्शन लिया है दैट इज मिडल ऑफ द फर्स्ट स्टोरी। तो मिडल ऑफ द फर्स्ट स्टोरी अपने को सेक्शन लेना है। वी हैव दिस डिस्टेंस, दिस इज 40 किलो न्यूटन, ये तुम लोगों का आई थिंक 80 किलो न्यूटन है और ये भी तुम लोगों का 80 किलो न्यूटन है। पोजिशन ऑफ द सेंट्रोइडल एक्सिस ऑलरेडी पता है अपने को, इफ़ यू वॉन्ट वी कैन ड्रॉ इट। ओके, बिकॉज मोमेंट लेना है तो हर एक का अपने को डिस्टेंस पता होना चाहिए। सो फर्स्ट से हम लोग अगर कंसिडर कर रहे हैं तो इट इज़ 10.33 जो ऊपर हम लोगों ने लिखा है। सेकंड से कंसिडर करेंगे दैट इज़ 3 पॉइंट, देन लास्ट के लिए भी आएगा 7 पॉइंट और इसके लिए
3 पॉइंट समथिंग, चेक करोगे तो इट इज़ 10.33 मीटर। रिपीट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, दिस इज़ 2.33, दिस इज़ 3.67 और दिस इज़ 7.67। ओके, नाउ वी हैव द डिस्टेंसेस, दिस इज़ आई थिंक 4 मीटर, ये भी 4 मीटर है, और ये तुम लोग का रहेगा 2 मीटर, बिकॉज यहाँ पे मैं अभी मोमेंट लेने वाला हूँ, तो इट विल बी 2 मीटर ओनली। सो ये सेक्शन के ऊपर अगर हम लोग ले रहे हैं तो पहले हम लोगों को पता है दैट इज़ वी हैव द सेकेंड एजम्पशन, दैट इज स्ट्रेस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रोइडल एक्सिस। ये तुम लोगों का कांस्टेंट रहेगा हर एक कॉलम के लिए। सो लेट अस एज्यूम तुम लोगों का यहाँ पे वर्टिकल फोर्स अगर तुम लोग एज्यूम करोगे तो देखो जो लेफ्ट हैंड साइड के रहेंगे फोर्सेस वो डाउनवर्ड एक्ट करेंगे, ये भी डाउनवर्ड आएगा, ये तुम लोगों का अपवर्ड आने वाला है, ये भी तुम लोगों का अपवर्ड आएगा। ये क्यों डाउनवर्ड और अपवर्ड एक्ट कर रहे हैं वो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने समझाया था, बिकॉज अगर मैं ये सेक्शन के ऊपर वॉट एवर इट इज जस्ट लाइक न्यूट्रल एक्सिस, इसके ऊपर अगर मैं मूवमेंट लेता हूँ तो देखो ऊपर का जो एक्सटर्नल मूवमेंट है इट विल फॉर्म ए क्लॉकवाइज मूवमेंट, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से जो मूवमेंट आ रहा है इट विल फॉर्म क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो ऑब्वियसली इट शुड बी बैलेंस बाय दिस इंटरनल फोर्सेस जो एक्सपोज हुआ है, तो उनके वजह से जो मूवमेंट आएगा इट शुड बी इन एंटी क्लॉकवाइज। तो इसीलिए ये नीचे जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, तभी जाके जो कपल फॉर्म होगा इट इज़ इन एंटी क्लॉकवाइज। तो इसीलिए हम लोग इनका डायरेक्शन ऐसे डिसाइड करते हैं कि लेफ्टवर्ड डाउनवर्ड आएगा और राइटवर्ड फोर्सेस अपवर्ड आएंगे। तो आफ्टर गेटिंग दिस अगर लेटेस्ट कंसिडर ये तुम लोगों का V1 एज्यूम करते हैं इसको, दिस इज V2, दिस इज V3 एंड दिस इज V4। नाउ वी हैव दिस सेकेंड एजम्पशन, तो फ्रॉम दिस सेकेंड एजम्पशन वी कैन से दैट इज V1 divided by area, this is nothing but stress in the first column will be divided by 10.33, okay, that will be equals to second column का तुम लोगों का force और we can say shear stress, sorry axial stress will be V2 divided by 2 area, because interior column का area 2 times है, divided by उसका सीरीज का distance कितना है, that is 2.33 will be equals to थर्ड कॉलम का देखो V3 डिवाइडेड बाय 2A डिवाइडेड बाय उसका डिस्टेंस रहेगा 3.67 will be equals to V4 डिवाइडेड बाय ओनली सिंगल एरिया डिवाइडेड बाय उसका डिस्टेंस 7.67। ये अपना मेन इक्वेशन बनता है सेकेंड एजम्पशन से। सो वी कैन इसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, बिकॉज एरिया अगर पता है अपने को, ऑब्वियसली एरिया पता नहीं है लेकिन एक ही फॉर्म में अपने को एरिया पता है, तो ये एरिया देखो कैंसिल हो सकता है सबका। सो वी कैन फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन दिस V1 V2 वॉट एवर। तो हर एक का मैं क्या करूँगा, ये रेशियो पहले कंसिडर करूँगा, वी विल पुट दी V2 वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ V1, सिमिलरली V3 वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ V1, V4 वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ V1, जिससे अपने को एक ही कांस्टेंट हम लोग एज्यूम करेंगे। तो अगर मैं फर्स्ट रेशियो लेता हूँ A1 कैंसिल हो जाएगा, वॉट एवर फर्स्ट रेशियो जो आएगा दैट इज V2 विल बी इक्वल्स टू V1 मल्टीप्लाई, ये चेक करोगे तो ये आ जाएगा टोटल 2 इंटू 2.33 डिवाइडेड बाय तुम लोग का दैट इज 10.33। दिस इज आवर V2 वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ V1। इफ यू एज्यूम इट दैट V2 विल बी इक्वल्स टू, तो ये V2 अराउंड तुम लोग का आता है दैट इज 0.45। चेक करो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। 0.45 इंटू V1 आ रहा है कि चेक करो सिर्फ। ओके गुड। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, V3 को भी V1 के फॉर्म में पुट करेंगे, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ दिस इज V3 विल बी इक्वल्स टू, ये भी वैसे ही चला जाएगा उस साइड के ऊपर, दैट इज V1 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 2 इंटू 3.67 डिवाइडेड बाय 10.33। तो अपना जो V3 का वैल्यू है वो भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, दैट V3 इट इज़ नथिंग बट थर्ड कॉलम का है, तो ये आता है दैट इज 0.7 V1, दिस इज सेकेंड रिलेशन। सिमिलरली V4 भी हम लोग पुट करेंगे तो V4 आएगा, ये देखो इस साइड में चला जाएगा, दैट इज V1 मल्टीप्लाई 7.67 डिवाइडेड बाय 10.33 विच इज़ नथिंग बट
ये अपने को मिल जाएगा, दैट इज V4 विल बी इक्वल्स टू 0.74 V1। वट एवर, ये सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड निकाला हुआ है, जो तुम लोग का डायरेक्शन रहेगा वो इसी डायरेक्शन में रहेगा। दिस इज डाउनवर्ड डाउनवर्ड, दिस इज अपवर्ड एंड अपवर्ड। ओके, आफ्टर गेटिंग दिस रिलेशन वी कैन फर्दर टेक द मोमेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर ऑफ द फर्स्ट स्टोरी। यानी कि अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं मोमेंट लेता हूँ, देखो यहाँ पे मोमेंट लेना है अपने को, तो यहाँ पे अगर मोमेंट लेता हूँ तो हर एक का मेरे को डिस्टेंस भी पता है, हर एक कॉलम का, और ये एक्सटर्नल फोर्सेस का भी डिस्टेंस पता है, वर्टिकल डिस्टेंसेस। सो वी कैन टेक द मोमेंट एट दिस ब्लैक पॉइंट, वी कैन से दिस इज द लाइन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर एंड वर्टिकल एक्सिस। तो यहाँ पे अगर मैं मोमेंट लेता हूँ तो ये 80 80 और 40 इसका भी मोमेंट आएगा एक्सटर्नल फोर्सेस का, और ये इंटरनल फोर्सेस का भी मोमेंट आएगा। सो वी कैन टेक, दैट इज टेकिंग द मोमेंट taking moment about the point of contraflexure about the point of contraflexure। ये तुम लोग के ऊपर है, तुम लोग को मोमेंट कहाँ पे लेना है, इट डिपेंड्स। अगर तुम लोग बीच में ले रहे हो तो भी चलेगा, अदरवाइज डायरेक्टली हम लोगों ने रेफरेंस पॉइंट के ऊपर लिया तो भी चलेगा। तो अभी मैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर ऑफ ए बी के ऊपर ले लेता हूँ। ओके, तो हम लोग को डिस्टेंस ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है, यहाँ पे लिया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, सो दैट वी विल निग्लेक्ट दी V1 वैल्यू। ओके, एक तुम लोगों को कैलकुलेशन कम होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे छोड़ के डायरेक्टली यहाँ पे ले रहा हूँ। यहाँ पे लिया तो भी चलेगा, यहाँ पे लिया तो भी चलेगा, यहाँ पे लिया, किधर भी ले लो, कुछ फर्क नहीं है। मैं सिर्फ एक वैल्यू निग्लेक्ट करने के लिए मैं डायरेक्टली ए बी के पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर के ऊपर यहाँ पे मोमेंट ले रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मोमेंट ले लिया तो देखो हर एक का डिस्टेंस अपने को पता है, ये कॉलम में से डिस्टेंस पता है, ये वर्टिकल डिस्टेंस भी पता है। सो वी विल फर्स्टली टेक द क्लॉकवाइज मोमेंट, ये 80 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 80 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाई 10, ये पहला तुम लोग का एक्सटीरियर मोमेंट आएगा। सो वी कैन टेक, दैट इज मोमेंट फर्स्ट वन, that is 40 multiplied by 10 plus second that is 80 multiplied by 6 plus 80 multiplied by 2. These are the external forces. Then we will start the internal one. तो ये क्लॉकवाइज था इसलिए मैंने पॉजिटिव ले लिया। तो देखो इंटरनल का भी जो पॉजिटिव रहेगा वो हम लोग पहले ले लेते हैं। ये देखो यहाँ पे मोमेंट ले रहे हैं हम लोग, तो ये V2 का जो मोमेंट आएगा इट इज इन क्लॉकवाइज, तो पहले V2 का ले लेते हैं। वॉट एवर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट रहेंगे वो हम लोग राइट हैंड साइड के ऊपर लेंगे। तो V2 का पहले हम लोग मोमेंट ले लेते हैं, प्लस V2 का वैल्यू कितना है 0.45 V1 मल्टीप्लाई बाय उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने पास ऑलरेडी है, ये तुम लोगों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने पास रहेगा ऑलरेडी, दिस इज 8 मीटर। इफ यू चेक दिस इज 8 मीटर, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम के बीच में से डिस्टेंस, तो ये हम लोग लिख सकते हैं दिस इज मल्टीप्लाई बाय 8 मीटर विल बी इक्वल्स टू, क्लॉकवाइज मोमेंट हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर रख दिया, एंटी क्लॉकवाइज राइट हैंड साइड के ऊपर। ये चेक कर सकते हैं V3 और V4 का जो मोमेंट आएगा इट इज़ इन एंटी क्लॉकवाइज, हम लोग V1 के यहाँ पे ले रहे हैं। तो दिस 8 मीटर प्लस 6, ओके 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगा V3, देन 8 प्लस 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा V4। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ विल बी इक्वल्स टू, सेकेंड तुम लोगों का V3 का वैल्यू देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज 0.7 ऑफ V1 multiplied by perpendicular distances that is 6 plus, check whether it is right or wrong, फर्स्ट जो है तुम लोगों का आई थिंक इट इज इसके ऊपर ले रहे हैं ना, ये टोटल तुम लोगों का 6 मीटर है, 6 प्लस 8 ये तुम लोगों का 18, 6 प्लस 8 दैट इज 16 आ जाएगा, 6 प्लस 8 14 प्लस लास्ट जो V4 है दैट इज 0.74 ऑफ V1 मल्टीप्लाई बाय उसका आ जाएगा टोटल 8 प्लस 6 प्लस 4 दैट इज 18। चेक करोगे सबका हम लोगों ने मूवमेंट ले लिया, तो पूरे इक्वेशन में चेक करोगे तो अपने पास सिर्फ V1 ही अननोन है, सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V1। चेक करो यहाँ पे V1 का वैल्यू कितना आ रहा है, आई थिंक इट इज़ अराउंड 62.2। चेक करो वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो लिखा है वो राइट ही रहे।
V1 का वैल्यू बराबर है कि नहीं चेक करो सिर्फ। ओके, assuming that ये राइट रहेगा, सो वंस वी गेट दी V1 वैल्यू वी कैन फाइंड आउट दी V2, V3, V4. Okay, as we know these values in the form of ratio, that is V2 is equals to 0.45 V1, V3, V4. So we can write, as we know, therefore V2 will be equals to 0.45 multiplied by 62.2. If you calculate it, it is come around, check it, what is the value of V2? Yes everyone, please do the calculations. V1 का मोमेंट नहीं आएगा ना, हम लोग उसी पे ही तो मोमेंट ले रहे हैं. वी आर टेकिंग द मोमेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर ऑफ द AB. तो V1 का मोमेंट उसी पॉइंट से पास हो रहा है, V1 फोर्स, तो 0 आएगा, तो इसलिए हम लोग नहीं ले रहे हैं. सिमिलरली कैलकुलेट द V3 एंड V4 वैल्यू. दिस इज 27.99. check the V3 value, that is V3 will be 0.7 of 62.2 and V4 will be 0.74 of 62.2. check the both values, बराबर है क्या? 43.54. what is the last one? चेक इट एवरीवन, बराबर है क्या? V1 का वैल्यू चेक करो सब लोग. 53.27. ठीक है, डोंट वरी, हम लोग सिर्फ ये मॉडिफाई करेंगे. कैलकुलेशन बराबर है तुम लोगों का, डोंट वरी. ये सिर्फ तुम लोगों का मॉडिफाई हो जाएगा V1 का वैल्यू. ओके, I think it is 53.27. 53.27. अगर ये 53.27 है तो V2, V3 और V4 ये मॉडिफाई हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन दी वैल्यू, दैट इज 53.27. ये भी 53.27 और ये भी तुम लोगों का 53.27. यस एवरीवन, फटाफट कैलकुलेशन करो. V2, V3 और V4 का क्या आ रहा है? $23.97. नेक्स्ट वन V3 और V4 चेक करो जल्दी. V3 आई थिंक 37.28. 37.28. What about V4? 39.42. समझ में आ रहा है? हम लोग इतना कुछ डिफिकल्ट कुछ कर नहीं रहे. वी आर यूजिंग ओनली टू फॉर्मूलेज. फर्स्टली वी आर टेकिंग द रिलेशन बिटवीन द V1, V2, V3 okay by using the assumption that is stress divided by distance from the CG will be constant. तो ये रिलेशन यूज करके हम लोगों ने क्या कर लिया, हर एक का रिलेशन फाइंड आउट कर लिया. देन वी आर टेकिंग द मोमेंट अबाउट एनी वन ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर so that we will get the V1 value only. Once we get V1 value, we will put that V1 value into another relations to get the another column forces. ये तुम लोगों को एक सिंगल स्टोरी का मिल गया. सिमिलरली हम लोग हर एक स्टोरी का निकालेंगे. ओके, नॉर्मली प्रॉब्लम तुम लोगों को 2 स्टोरी 2 बे तक ही लिमिटेड है, तो इसलिए इतना बड़ा प्रॉब्लम तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी फॉर द रेफरेंस हम लोग ये टोटल प्रॉब्लम कर रहे हैं. तो इसलिए ये हो गया स्टोरी 1 के लिए. सिमिलरली हम लोग चले जाएंगे स्टोरी 2 के लिए. ओके, सो लेट अस कंसिडर दिस सेकेंड स्टोरी.
इसके लिए हम लोग ये डायग्राम लेके जाते हैं, दैट इज ये डायग्राम देखो। अभी अपने को ये स्टोरी के बीच में से अपने को मोमेंट लेना पड़ेगा सेकेंड स्टोरी के, इसलिए सिर्फ इतना ही डायग्राम में लेके जा रहा हूँ। ओके, सो इट विल बी इजी फॉर अस। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दिस इज स्टोरी नंबर 2। ओके, तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट फ्रैक्चर यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे तुम लोगों को एक बेनिफिट है कि वॉट एवर रिलेशन हम लोगों ने जो फाइंड आउट किया था फर्स्ट में वो चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? बिकॉज तुम लोग का डिस्टेंसेज जो है हॉरिजॉन्टल वो सेम ही रहने वाले। तो इसलिए ये जो हम लोगों ने V1, V2, V3 और V4 का जो रिलेशन निकाला था वो अभी भी सेम ही रहने वाला है। सिर्फ चेंज क्या होगा, वी हैव टू चेंज दी सेकेंड इक्वेशन, बिकॉज यहाँ पे एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो फोर्स है वो चला गया। तो अपना जो तुम लोग का मोमेंट का जो इक्वेशन है वो सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा। वॉट एवर, इसके लिए हम लोग लेट अस कंसिडर फोर्सेस कंसिडर कर लेते हैं। ये तुम लोग का रहता था डाउनवर्ड आई थिंक, और ये फोर्सेस तुम लोगों के अपवर्ड हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे भी मैं V1, V2 ही यूज़ कर रहा हूँ। ध्यान में रखना ये V1, V2 अभी हम लोग सेकेंड स्टोरी के लिए यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो इफ़ यू वांट कि तुम लोग को ये कुछ नया यूज़ करना है P1 या फिर Q, तो तुम लोग यूज़ कर सकते हो। आई एम जस्ट चेंजिंग विद दी स्टोरी वाइज। तो यहाँ पे सेकेंड स्टोरी के लिए भी मैंने V1, V2 कंसिडर किया है। ध्यान में रखना ये V1, V2 सिर्फ स्टोरी 2 के लिए फोर्सेस हैं। तो वॉट एवर सेकेंड इक्वेशन हम लोग वापस यूज करेंगे, दैट इज टेकिंग मोमेंट, दैट इज समेशन ऑफ मोमेंट, proportion will be सेम जो proportion हम लोगों ने यूज किया था। देन मोमेंट अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट फ्रैक्चर ऑफ द BC। अभी हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट फ्रैक्चर ये इसके ऊपर यहाँ पे लेंगे, देन रिटर्न थर्ड स्टोरी के लिए यहाँ पे लेंगे। सो लेट अस कंसिडर टेकिंग मोमेंट्स about point of contrast flexure of BC। ओके, BC के ऊपर अगर हम लोग ले रहे हैं तो देखो यहाँ पे रिटर्न क्या आ जाएगा, V1 का तो मोमेंट 0 आएगा। ये ऊपर का जो दो फोर्सेस है उसका मोमेंट हम लोग ले सकते हैं, दैट इज 80 मल्टीप्लाई बाई 2 मीटर प्लस 40 मल्टीप्लाई बाई 6 मीटर। और कौन सा पॉजिटिव आएगा, ये V2 का भी मोमेंट पॉजिटिव आएगा। तो प्लस V2 का वैल्यू क्या था अपना, दैट इज 0.45 V1 मल्टीप्लाई बाय कितना डिस्टेंस है वो, इट इज 8 मीटर। आफ्टर दैट विल बी इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, दैट इज V3 का तुम लोगों का डिस्टेंस है 0.7 ऑफ V1 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कितना आएगा, दैट इज 8 प्लस 6 आई थिंक इट इज 14 प्लस लास्ट वन दैट इज V4 दैट इज 0.74 ऑफ V1 मल्टीप्लाई बाय उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा, दैट इज 18। ओके, तो फिर ये समेशन के बाद फिर अपने को वैल्यू मिलेगी V1 की रिटर्न। तो यहाँ से कैलकुलेट करके देखो V1 का वैल्यू कितना आ रहा है। आई थिंक मैंने भी थोड़ा सा वहाँ पे डिस्टेंस गलत पुट किया है, तो इसलिए हर एक इसमें अपडेट तुम लोग का गलत ही आएगा मेरा आंसर। तो इसलिए तुम लोग ही कैलकुलेट करो कि मेरे इसमें थोड़ा सा गलती हुआ आई थिंक। चेक इट कितना है वो V1 का वैल्यू, 52.89। यस, सबको बराबर है। चेक इट वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। 52.89 किलो न्यूटन। तो अपने पास अगर V1 का वैल्यू है, सो वी कैन फाइंड आउट द V2, V3 एंड V4। दैट इज V2 विल बी इक्वल्स टू 0.45 V1। चेक करो, V3 विल बी 0.7 ऑफ V1 एंड V4 विल बी 0.74 ऑफ V1। कैलकुलेट करो वैल्यूज कितने आ रहे हैं। स्टोरी 2 पे भी हम लोगों ने वही पैटर्न फिक्स किया है। स्टोरी 2 पे भी हम लोग AB यानी कि BC वहाँ पे कॉलम हो जाएगा वो। ओके, देखो यहाँ पे हम लोगों का कॉलम क्या है, दिस इज पॉइंट
B एंड दिस इज C एंड दिस इज D। नीचे का तुम लोगों का A था तो AB के बीच में हम लोगों ने ले लिया पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट। अभी रिटर्न हम लोग BC के ऊपर ले रहे हैं। ये क्यों कांस्टेंट ले रहे हैं? बिकॉज अपना जो कैलकुलेशन है वो तुम लोगों को ईजी पड़ेगा। वही इक्वेशन हम लोग रिपीट कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ सिर्फ डिडक्ट हो जाएगा एक्सटर्नल लोड, तो इसलिए पॉइंट ऑफ तुम लोगों का जो मोमेंट का है वो सेम ही रखने का, जिससे तुम लोगों का कैलकुलेशन बचेगा। नहीं तो हर बार तुम लोगों को सोचना पड़ेगा कहाँ से तुम लोगों को परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। V1 13.11, V1 13.11 है। चेक करो, इक्वेशन एक ही है तो फिर सबका अलग क्यों आ रहा है? आंसर तुम लोगों का 20.491। ओके, तो 20.491 मैं एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे। Check with reference to this V1 value, find out the value of V2, V3 and V4 fast। $20.49 राइट है, बिकॉज मेरा भी अराउंड 23 है तो यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक था। 9.22 फर्स्ट V2 का मिल गया है 9.22। चेक दी V3 एंड V4। यस फास्ट, इतना तुम लोगों को टाइम नहीं लगना चाहिए। 14.34, 15.162, 14.34, 15.162। ओके, आफ्टर गेटिंग दिस वैल्यू रिटर्न देखो लास्ट तुम लोगों का ये सिंगल स्टोरी के ऊपर हम लोग चले जाएंगे, ऊपर वाला, दैट इज स्टोरी नंबर 1, सॉरी स्टोरी नंबर 3। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम ले लिया तो भी चलेगा, अदरवाइज ठीक है हम लोग सेम ही डायग्राम ले लेते हैं। ठीक है, थर्ड स्टोरी के लिए हम लोगों ने देखो अभी यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा कट कर दिया रिटर्न ऊपर का। दिस इज अवर स्टोरी नंबर 3। स्टोरी नंबर 3 के लिए भी देखो ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर अपने सेम ही रहेंगे। यहाँ पे ये सिर्फ आएगा CD के ऊपर, तो यहाँ पे तुम लोगों का जो रिलेशन है वो सेम ही रहने वाला है। दिस इज V1, दिस इज V2, ये रहेगा V3 और ये रहेगा V4। So now return we will take the moment, summation of moment at the point of contraflexure of CD। तो CD के ऊपर अगर हम लोग लेंगे तो देखो यहाँ पे रिटर्न मॉडिफाई हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे 40 का यहाँ पे मूवमेंट आएगा, दैट इज 40 मल्टीप्लाई 2 मीटर प्लस 0.45 V1। बाकी क्या है वो रिपीट होने वाला है वैसे के वैसे। 8 मीटर विल बी इक्वल्स टू, यह आ जाएगा 0.7 of V1 मल्टीप्लाई 14 प्लस 0.74 V1 इंटू 18। कैलकुलेट करो, यहाँ से अपने को V1 का वैल्यू मिलेगा फॉर दी थर्ड स्टोरी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बहुत सिंपल है, अप्रोक्सीमेट मेथड हम लोग इसीलिए यूज़ कर रहे हैं कि अपने को अगर कोई भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग रहेगा उसका वैल्यू फटाफट मिल जाए, इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं, सो दैट हम लोग कुछ डायमेंशंस या फिर अप्रोक्सीमेट डायमेंशन हम लोग वहाँ पे पुट कर सकते हैं। दिस इज 4.098, 4.098। चेक करो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। इफ यू नो दिस वैल्यू देन वी कैन फर्दर प्रोसीड फॉर द V2 वैल्यू एंड V3 V4। सो V2 हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 0.45 ऑफ V1। सिमिलरली V3 विल बी 0.7 ऑफ V1 एंड V4 विल बी 0.74 ऑफ V1। चेक करो, फ्रॉम दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ V2, V3, V4। यस 1.84, 1.84 सेकेंड V3 और V4 के लिए 2.86, 3.03, 2.86,
3.02 03। अभी देखो हर एक स्टोरी का हम लोगों ने एक वर्टिकल फोर्स फाइंड आउट कर लिया है। अगर अपने को एक भी फोर्स अगर वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल अपने को मिलता है तो हम लोग पूरा डायग्राम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने पोर्टल में किया था वैसे ही हम लोग यहाँ पे करेंगे, डायरेक्टली डायग्राम के ऊपर कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग। सो नाउ वी विल ड्रॉ दी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दी होल स्ट्रक्चर। तो देखो अभी फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, लेट अस। हम लोगों के पास ऑलरेडी इक्वेशन है, यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था ये। फर्स्ट तुम लोगों का यहाँ पे ऊपर का कॉर्नर का कॉलम, देन नीचे रिटर्न यहाँ पे एक रहेगा। ये तुम लोगों का ओनली सिंगल थर्ड स्टोरी है। फिर उसके बाद जाएंगे हम लोग सेकेंड स्टोरी के ऊपर। देखो यहाँ पे ये बहुत तुम लोगों का लंबा जाएगा, तो इसलिए डोंट वरी, एग्ज़ाम में तुम लोगों को 2 स्टोरी 2 बे तक ही आएगा, तो इसलिए इतना प्रॉब्लम करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन हम लोग मैक्स टू मैक्स ले रहे हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ये थोड़ा सा ज़्यादा कर रहे हैं वर्कआउट। ओके 3 पे तुम लोगों का कंप्लीट हो गया। देन नीचे चले जाएंगे हम लोग। दिस इज फाइनल टॉप स्टोरी का ये फ्री बॉडी डायग्राम होगा। देन सेकेंड स्टोरी के लिए रिटर्न आना पड़ेगा अपने को। दिस इज बुक में तुम लोगों को थोड़ा इजी पड़ेगा टू ड्रॉ इट। इट इज अपने को सिर्फ यहाँ पे मोमेंट से मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा। दो यहाँ पे थर्ड और सेकंड स्टोरी, और लास्ट यहाँ पे फर्स्ट स्टोरी हमने को ड्रॉ करना पड़ेगा। चेक कर सकते हो यहाँ पे तीनों के तीनों हम लोगों ने ड्रॉ कर लिए। यहाँ पे अपना हॉरिजॉन्टल फोर्स है, दैट इज फर्स्ट पे यहाँ पे 40 किलोन्टन है। यहाँ पे चेक करोगे तो इट इज 80 किलो न्यूटन। दिस इज ऑल्सो 80 किलो न्यूटन। ओके डिस्टेंसेस ऑलरेडी पता है अपने को। टोटल हाइट 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर है, हॉरिजॉन्टल 864। उसके बाद अपने को जो फोर्सेस पता है वो हम लोग यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं, दैट इज वर्टिकल फोर्सेस पता है विद द डायरेक्शंस। सो इफ यू स्टार्ट विद द फर्स्ट, चेक करोगे फर्स्ट स्टोरी से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट स्टोरी से ए बी से अपने को मिला हुआ है वैल्यू, दैट इज V1 इज 53.27। देखो यहाँ पे मिला हुआ है अपने को 53.27। उसके बाद ये भी वैल्यूज़ अपने को मिला हुआ है, ये भी है और ये भी है। ओके डायरेक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी लिया था पहले। सेकेंड दैट इज 23.97। थर्ड 37.28 और फोर्थ वन दैट इज 39.42। थोड़ा पैटर्न बना के रखो कि वर्टिकल फोर्सेस के लिए हम लोग राइट हैंड साइड पे लिखेंगे, सो दैट यू विल नॉट बी कंफ्यूज, बिकॉज पेपर में तुम लोग को एक ही कलर का पेन यूज़ करना है, तो एट दैट टाइम तुम लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि वैल्यू किसका किधर जा रहा है। ओके तो वॉट एवर ये जो वैल्यू रहेगा यही यहाँ पे अपोजिट में आ जाएगा, तो ये वर्टिकली अपवर्ड आएगा, ये भी वर्टिकली अपवर्ड आएगा। दिस इज डाउनवर्ड विद दिस सेम वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड स्टोरी के लिए भी वैसे ही हो रहा है। दिस इज अपवर्ड, दिस इज
Okay, downward, this is upward, this is upward, this is downward. वैल्यूज है अपने पास ऑलरेडी. दिस इज सेकेंड स्टोरी के लिए. देखो यहाँ पे 20.49, सेकेंड 9.22, थर्ड 14.34, देन 15.162. रिटर्न हम लोग चले जाएंगे टॉप स्टोरी के लिए. इफ इट इज डाउनवर्ड तो ये आ जाएगा अपवर्ड. ये अपवर्ड ही था तुम लोगों का, तो दिस इज डाउनवर्ड. वैल्यूज है अपने पास ऑलरेडी. V1 इज 4.098, 1.84, 2.86, 3.03. ओके, अभी हम लोगों को सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस ही पता है. अगर एक भी लोडिंग तुम लोगों को एक भी जॉइंट अगर पता रहेगा तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. वी विल स्टार्ट फ्रॉम दी लेफ्ट टॉप कॉर्नर, बिकॉज यहाँ पे अपने को देखो फोर्सेस पता है तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं. अभी देखो यहाँ पे समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस अगर मैं करूँगा सिर्फ इस पार्ट के लिए, देखो चाहिए तो तुम लोग ये टोटल लिख लो कि कौन कौन से यहाँ पे मेंबर्स है. दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी, सी एंड द लास्ट वन दिस इज डी. तो अगर मैं डी का यहाँ पे अगर तुम लोग को इक्विलिब्रियम हम लोग कंसिडर करते हैं, वी कैन अप्लाई दी इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम फॉर दिस फ्री बॉडी डायग्राम ओनली फॉर दिस पार्ट. अगर इसके लिए हम लोग सेपरेट करेंगे तो इसके लिए हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं. तो अगर सिर्फ इस पार्ट के लिए अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो देखो समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस अगर करूँगा मैं तो ये 4.098 यहाँ पे डाउनवर्ड है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज अपवर्ड 4.098. अंडरस्टूड. ओके, सिंपल हम लोगों ने जो पोर्टल में किया था वही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं. सिमिलरली अगर ये वर्टिकली अपवर्ड है तो इस साइड का वर्टिकली डाउनवर्ड तो हम लोग बाद में देखेंगे. लेट अस कंसिडर वी विल टेक दिस समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट डी इज इक्वल्स टू 0 फॉर दिस पार्ट ओनली. अगर वो कर रहे हैं हम लोग तो देखो ये जो 4.098 है इट विल फॉर्म है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. तो उसको बैलेंस करने के लिए इस पॉइंट से अपने को क्या चाहिए, क्लॉकवाइज मूवमेंट रखे. देखो 4.098 से अपने को जो मूवमेंट मिलेगा एट पॉइंट डी इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो यहाँ पे अगर कोई एक्सटर्नल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रेजेंट है तो उसको जीरो करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो फोर्स रहेगा हॉरिजॉन्टल यहाँ से अपने को मूवमेंट मिलेगा जो उसको अपोज करेगा. तो इसलिए इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द लेफ्ट मैंने कंसिडर किया है सो दैट वी विल गेट दी क्लॉकवाइज मूवमेंट अराउंड द डी. और इसका तुम लोग का वैल्यू क्या रहेगा, दिस इज नथिंग बट 4 मीटर, दिस इज 2 मीटर. So this force can be taken by taking the summation of moment at point D is equals to 0. So if you want we can take summation of moment at point D will be 0. So we can take this is 4.098 multiplied by 4 will be balanced by this force. Let us consider उसको मैं VCD consider करता हूँ, that VCD multiplied by distance is 2 मीटर. तो अपने को ये वैल्यू मिल जाएगी, दिस इज 4.098 मल्टीप्लाई बाई 2. चेक करो कितना आ रहा है, 4.098 मल्टीप्लाई बाई 2 इट इज 8. यस चेक करो 4.098 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आएगा, 8.196. ओके, तुम लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा आई थिंक, तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर लेता हूँ. चाहिए तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के लिए एक अलग सा पेन अगर यूज़ किया तो भी चलेगा. देखो मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड के ऊपर वर्टिकल लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर मैं ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लिख रहा हूँ. तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 4.098 दिस इज 8.196.
ये अगर टूवर्ड्स द लेफ्ट है तो ये अपने को मिल जाएगा टूवर्ड्स द राइट विद द सेम वैल्यू, दैट इज 8.196। यही अगर तुम लोग करोगे समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, तो देखो 8.196 टूवर्ड्स द लेफ्ट है, ये 40 टूवर्ड्स द राइट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो फोर्स आएगा हॉरिजॉन्टल वो भी टूवर्ड्स द लेफ्ट ही रहेगा, बिकॉज अपने को ये 40 चाहिए दोनों समीशन टूवर्ड्स द लेफ्ट। इसको बैलेंस करना है 40 को, ऑलरेडी 8.1 तुम लोग का 8.196 चला गया उसमें, तो टोटल जो बचेगा दैट इज 40 माइनस दिस 8.31.804 बचेगा। अगर ये टूवर्ड्स द लेफ्ट है तो ये आ जाएगा टूवर्ड्स द राइट। उसको बैलेंस करने के लिए ये देखो ये अपवर्ड है तो ये यहाँ पे आ जाएगा डाउनवर्ड विद द सेम वैल्यू, दैट इज 4.098। ओके, गॉट इट। सिमिलरली हम लोग हर एक पॉइंट का करेंगे, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं तो देखो वर्टिकल में दो सेक्शन के ऊपर यानी कि दो पॉइंट के ऊपर अपने को फोर्स पता है, तीसरे पे पता नहीं, सो वी कैन टेक दिस इज डाउनवर्ड, दिस इज डाउनवर्ड, तो ये क्या रहेगा अपवर्ड। वैल्यू क्या रहेगा, दिस इज 31.804 प्लस 8.1.84, दोनों का अगर समेशन करता हो तो ये वैल्यू अपने को मिल जाएगा, दैट इज सॉरी वर्टिकल वाला फोर्स जो है दिस इज 4.098, ओके डाउनवर्ड, और ये 1.84 वो भी डाउनवर्ड है, तो ये जो वैल्यू जो मिलेगा दैट इज 4.098 प्लस 1.84, ये दोनों का समेशन रहेगा दैट इज 5.938 अपवर्ड, और ये यहाँ पे डाउनवर्ड बोल सकते हो। सो नाउ रिटर्न अगर अपने को हॉरिजॉन्टल निकालना है तो रिटर्न हम लोग हॉरिजॉन्टल के लिए भी वही इक्वेशन यूज करेंगे, दैट इज वी विल टेक द मोमेंट एट दिस पॉइंट। ये एच पॉइंट है तो यहाँ पे अगर मैं मोमेंट लेता हूँ तो देखो यहाँ पे ये वर्टिकल मोमेंट आएगा, ये वर्टिकल का आएगा, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल का चेक करना पड़ेगा। इफ़ यू टेक मोमेंट तो इसका देखो ये दोनों का मोमेंट जो है इट इज़ इन एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा इट शुड फॉर्म ए क्लॉकवाइज मोमेंट, तो इसलिए ये टूवर्ड्स द लेफ्ट रहेगा टू फॉर्म द क्लॉकवाइज मोमेंट। चेक करोगे तो ये डिस्टेंस तुम लोग का आई थिंक 4 मीटर है, ये तुम लोग का 3 मीटर है, और हाइट का तुम लोग का 2 मीटर ही रहेगा। सो इफ़ यू टेक द मोमेंट, देखो दोनों का समेशन मोमेंट कितना आएगा, दैट इज 4.098 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5.938 मल्टीप्लाई बाय 3, दोनों को बैलेंस करेगा दिस फोर्स मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि डिवाइड बाय 2 करूँगा मैं तो यहाँ पे अपने को वैल्यू मिलेगी 17.103 हॉरिजॉन्टल वाला। ओके, यहाँ पे मूवमेंट लेके हम लोगों ने निकाला, अगर ये 17.103 टूवर्ड्स द लेफ्ट है तो ये आ जाएगा टूवर्ड्स द राइट विद दिस सेम वैल्यू। ओके, सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लेता हूँ तो देखो 31.804 टूवर्ड्स द लेफ्ट है और ये टूवर्ड्स द राइट है, तो ऑब्वियसली चेक करोगे तो ये टूवर्ड्स दी तुम लोग को लेफ्ट ही मिलने वाला है, दैट इज 31.804 माइनस 17.103, इट इज़ अराउंड 14.701, ये टुवर्ड्स द लेफ्ट है तो ये आ जाएगा टुवर्ड्स द राइट। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? देखो अभी टोटल फ्रेम में यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज वॉट एवर यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ ऑलरेडी हम लोगों ने पोर्टल फ्रेम में किया हुआ है, तो राइट डाउन करो वॉट एवर हम लोगों ने ये अभी तक सॉल्व किया हुआ है। सो इन टुमारो या फिर नेक्स्ट लेक्चर हम लोग यहाँ पे वैल्यूज तुम लोगों का आना चाहिए, और एटलीस्ट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तुम लोग ड्रॉ कर सकते हो, इतना तो बनाओ। प्रीवियस जो पोर्टल फ्रेम था उसमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस अपने को पता थे, हम लोगों ने उससे वर्टिकल फोर्सेस निकाला था, यहाँ पे अपने को वर्टिकल पता है, वी आर फाइंडिंग आउट दी हॉरिजॉन्टल, दोनों कुछ डिफिकल्ट नहीं है, वहाँ पे कुछ और नोन था, यहाँ पे कुछ और। सो बाय यूजिंग दिस इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम फाइंड आउट ऑल दी फोर्सेस। ओके, सो टोटल फोर्सेस मिलने के बाद हम लोग मूवमेंट ले सकते हैं पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। एग्जांपल अगर मैं डी के ऊपर मूवमेंट ले रहा हूँ, देखो सिंपल डी के ऊपर अगर हम लोग मूवमेंट लेते हैं तो डी के ऊपर ये इस साइड से क्या आएगा, दैट इज 4.098 मल्टीप्लाई बाय 4, ये जो मूवमेंट फॉर्म कर रहा है इट इज़ इन एंटी क्लॉकवाइज, तो डी के ऊपर जो मूवमेंट आएगा, रेफरेंस के लिए सिर्फ मैं लिख रहा हूँ, डी के ऊपर अगर हम लोग मूवमेंट लेते हैं तो ये मूवमेंट जो आएगा इट इज़ इन क्लॉकवाइज। क्यों क्लॉकवाइज, ये 4.098 मल्टीप्लाई बाय 4 जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको हम लोग अपोज कर रहे हैं, तो
098 मल्टीप्लाई बाय 4, ये जो वैल्यू आएगा वो तुम लोग का मोमेंट रहेगा इन क्लॉकवाइज, दैट इज 16.392। सिमिलरली चेक करोगे तो देखो ये अगर तुम लोगों का क्लॉकवाइज है तो ऑब्वियसली इट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज। चाहिए तो डायरेक्टली लिख सकते हो या फिर यहाँ से भी निकाल सकते हो बॉटम पार्ट से। बॉटम पार्ट से चेक करोगे तो 8.196 मल्टीप्लाई बाय 2 अगर चेक करोगे तो वो भी वैल्यू सेम ही आएगी, दैट इज 16.392। ओके, तो सिमिलरली अपने को हर एक मेंबर में से अगर फोर्स मिल गया तो हम लोग हर एक में से मूवमेंट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी हम लोग मूवमेंट निकाल सकते हैं। इट विल फॉर्म एंटी क्लॉकवाइज, इट विल फॉर्म क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो उसको अपोज करने के लिए यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आएगा। वैल्यू विल बी सेम, दैट इज 8.196 मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर, तो चेक करोगे तो इट इज आएगा 16.392। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग क्या हम लोग कर रहे हैं? सिमिलरली हम लोग हर एक में से पॉइंट में से मोमेंट निकालेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ तक ही स्टॉप कर लेता है, टाइम तुम लोग का ज़्यादा